Now Modigliani and Miller model same. M Limited belongs to a risk class for which the capitalization rate is what beta 10%. Your capitalization rate is given, that is 10%. Okay. It has 25,000 outstanding shares. It has what? 25,000 outstanding shares, and the current market price is rupees 100. Right? Current market price is what, bacha? Rupees 100. Clear? That is given. So see beta, it's normal, it's common that it has 25,000 outstanding shares. Outstanding shares means what? At the beginning. That is N, small n. That's one. In formula, we use this N as number of shares at the beginning. So it has means what? Beginning. It has in beginning, that is what? 25,000 outstanding shares. मतलब उसके पास पहले से 25,000 shares है. That is, it has in the beginning. It has in the beginning 25,000 shares, right? And the current market price is what beta? 100. And the market price, that is current market price, is what? 100 rupees. Okay. Now it expect a net profit of rupees 2,50,000. What did I expect? What it expect that a net profit of rupees 2,50,000 for the year, and the board is considered dividend of rupees 5 per share. And what beta? Board is considered dividend of rupees what? 5 per share. Okay. Okay, no problem. Now what is given? All the information is given here. Now M Limited requires what? M Limited requires to raise rupees 5 lakhs. Now M Limited is required to raise what beta? Rupees 5 lakhs. Means this is what? Investment. They required to raise rupees 5 lakhs. अब normal सी बात है, किसके लिए required होगा बेटा? This money is required for investment purpose only, right? So M Limited required to raise rupees 5 lakhs for an approved investment expenditure. For what? Approved investment expenditure. So this is required for investment expenditure. Okay, no issue. Show how does the MM approach affect the value of M Limited. आपको show करना है कि कैसे, how does the MM approach affect the value of M Limited if dividends are paid, or not paid, right? So all the information is given. Last sentence, remember it, that is M Limited required to raise rupees 5 lakhs for an approved investment expenditure. Okay, approved investment expenditure, that is I. So how does the MM approach? You have to show that how does the MM approach affect the value of M Limited. ये जो M Limited है कंपनी, उसको ये जो MM approach है कैसे अफेक्ट करेगा? If dividends are paid or not paid. तो ये अफेक्ट वाला फंडा क्या होता है वो बाद में बताऊंगा मैं, कैसे अफेक्ट करेगा. तो पहले अपना जो बेसिक चीज है वो करते हैं हम लोग. If dividends paid, if dividend is not paid, means declared, not declared, उसके बेसिस पे प्राइस निकालो. Then number of क्या shares कितना होगा for investment required of rupees 5 lakhs. Everything as common as usual. First we have to calculate, and after that we will see the main conclusion. फिर हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरह एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस, राइट? तो याद रखो, कैग शब्दों को पता है ना? कैग, TYBF, कैग के बारे में पता है ना? C&AG पता है कि नहीं? अरे भाई TYBF हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये सब याद रखना. पता है तो फटाफट चैट बॉक्स में आंसर डालो. ये आपके फ्यूचर का नॉलेज है, बराबर है? जो स्ट्रीम में पढ़ रहे हो, अगर C&AG का फुल फॉर्म नहीं पता है तो मतलब कुछ नहीं है बेटा, याद रखना. C&AG क्या है? कम ऑन जल्दी, जिसको पता है डालो फटाफट चैट बॉक्स में. नहीं पता? सुन लो बेटा, C&AG मेन ऑडिटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट करता है. समझे बच्चा लोग? याद रखना. समझा क्या?
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑडिट करता है वो है अपना क्या, कैग, जिसको C&AG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। समझे? इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं इसको, और इसको कोई निकाल नहीं सकता, इसको कोई नहीं निकाल सकता, याद रखना। समझे कि नहीं? मालूम पड़ा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा कोई नहीं निकाल सकता? निकाल तो सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है पता है निकलने के लिए? लोकसभा, राज्यसभा, इसमें 2/3 वोटिंग होगी अगर उसके अगेंस्ट में, तो ही वो निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल सकता। और इंडिया की हिस्ट्री में आज तक, इंडिया की हिस्ट्री में आज तक कोई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को निकाला नहीं गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो आप पढ़ रहे हो ना, उसी में से एक बंदे बनेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के, हेड बनेंगे या फिर उसमें काम करेंगे। मेन होता है, सैलरी पता है कितना होता है उसका? जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उसका जो सैलरी होता है उतना सैलरी इसका मिनिमम होता है, मिनिमम। CAG का मिनिमम सैलरी वो होता है, सोचो। तो इसको ब्राइब क्या देगा तुम लोग यार? कौन ब्राइब देगा इसको? ये ब्राइब क्या लेगा, ये कितना खाएगा? तो सोचो, समझे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो नॉर्मल से बंदा, नॉर्मल सी बात है, क्या होना चाहिए? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, बराबर है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी जो गवर्नमेंट की एग्जाम होती है फिर एंट्रेंस की, उसमें जो रैंकिंग में है वो लोग अगर एप्लीकेशन देंगे तो फिर इसमें आएंगे, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस कर करके हेड बनते हैं। अभी जो ये सत्यम स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सब सुना है ना? कौन निकाला ये सब? थाउजेंड्स, लैक्स, करोर्स, सोचो, करोर्स नहीं 1000 करोर्स के स्कैम्स किसने निकाले? CAG ने। तो ये सब बेटा, ये सब याद रखो, TY में हो, ये सब थोड़ा रिसर्च किया करो, अपने सब्जेक्ट से, कोई बाहर से नहीं है, सब अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जो हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, ये पूरा सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज है। तो ये लोगे तो ही आगे फ्यूचर में बढ़ोगे। सब सोचने का है, सब रिव्यू करने का है, ये कोई सब्जेक्ट से अलग नहीं है, अपने सब्जेक्ट से लिंक्ड है। ठीक है, तो याद रखना, अपॉइंट कौन करता है इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने वाला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये किसका ऑडिट करता है? CG एंड SG का, और सबको कंट्रोल करता है, जितनी भी कंपनी है उसको कंट्रोल करता है। कोई कंपनी का ऑडिटर नहीं, कोई कंपनी अगर ऑडिटर नहीं रख रही है तो ये फिर अपॉइंट करेगा CAG। पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, उसके बाद वो नहीं हुआ तो शेयर होल्डर, फिर वो भी नहीं कर रहे हैं तो CAG भेजेगा अपना ऑडिटर, जाओ भाई ऑडिट करके आओ, फिर इनको बताता हूँ। तो ये सब चीज याद रखो, समझे? CAG याद रखना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो घोटाले निकाले उसमें मेन कौन था? विनोद राय। विनोद राय का नाम सुना है? नहीं सुना है? ठीक है, तो सुन लो, विनोद राय। फिर राजीव महर्षि, नेक्स्ट CAG। अभी कोई नया चेंज हुआ है शायद, जस्ट रिसेंटली, GC करके, मुर्मू करके शायद आए हैं कोई, ठीक है? तो अभी जस्ट अभी अगस्त में, ठीक है? तो ये सब थोड़ा GK स्ट्रॉन्ग रखो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, गवर्नमेंट पर्पस में कोई ना तो कोई कहीं भी बटन दबा जाएगा ना बेटा, समझे कि नहीं? तो ये सब याद रखो बच्चा लोग, वेरी माइनस इंपॉर्टेंट। કરીને कुछ असर दबा 5 6 8। तो अभी देखो, तो याद रहेगा, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो चलो, तो ये है अपना, ये देखो, ये थोड़ा अपने सब्जेक्ट से लिंक्ड नॉलेज है जो कि आपको रहना चाहिए, इसलिए बता दिया। GK याद रखो, लेकिन इसके बारे में थोड़ा 10 मिनट निकाल के लेक्चर के बाद थोड़ा रिसर्च कर लेना, ठीक है? आ जाओ, ये हो गया अपना। अब अपने को इसको सॉल्व करना है, तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। आई विल शेयर द स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड। चलो, सो क्वेश्चन देखो, आई हैव सेंट इन द ग्रुप आल्सो। Now see, step by step we will going to solve it. चलो, तो सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन में नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी नेम इज व्हाट?
M Limited. What beta? The name of the company is what beta? M Limited. Okay, clear है बच्चा? अब क्या दिया नेक्स्ट? क्या करना है पहले? कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस. क्वेश्चन देखो ध्यान से. कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर अंडर MM मॉडल. दिखा दो. कैलकुलेशन ऑफ market price. What beta? Calculation of market price per share under which model? MM model, which is also known as what? Dividend irrelevancy model. क्या बोलते बेटा इसको? This is also known as dividend irrelevancy model, right? MM model और dividend irrelevancy model. Okay, चलो तो आ जाओ. फॉर्मूला क्या है पता ही है सबको. फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला. P0 is equal to, what is the formula? Yes, P1 plus D1 divided by 1 plus KE. Right? Very good. Very good, Vidisha. Meghna, well done, beta. So P0 is equal to P1 plus D1 divided by 1 plus KE. This is the normal formula. Now we will have to use it step by step. So first case, what beta? Very first, when, what? If dividend is declared. If dividend is declared. Sure. What beta? If dividend is what beta? Declared. अगर dividend declared होगा तो क्या होगा? तो first one, if dividend is declared. चलो बेटा, if dividend is declared, so it's common, that is P0 is equal to क्या हो गया आपका? P0 आपका क्या है? आ जाओ. P0 देखो क्वेश्चन में दिया आपको. P0 प्राइस कितना था? What was the price? 100. देखो इधर शो कर रहा हूं मैं. See here बेटा. So M Limited belongs to a risk class for which the capitalization rate, that is KE, 25,000. ये तो अपना beginning का equity shares है, number of shares है N, that is small n, and current market price is 100. So this is what P0. जो base है अपना, that is what market price का base, that is P0. So P0 is what बेटा? Your 100. तो देख लेते हैं सब. P0 100 है, P1 find out करना है, D1, D कितना है बेटा? दिख रहा है इधर? Directly calculation करके दिया 5 per share. D is what? 5 per share, that is D1. ठीक है? That see here, it expect a net profit of 2,50,000 for the year, and the board is considered, means board is considering dividend of rupees 5 per share. So D1 is what? 5. KE आपको पता ही है. This is what KE. So all the information is here. सब मैंने इधर ही बता दिया. फिर से क्वेश्चन के इधर. Right? Now let's put it in the formula. So P0 is what beta? Your P0 is 100. Your P0 is 100 is equal to P1. P1 find out करना बेटा. We have to find out this P1 plus D1 is what? D1 is 5 divided by 1 plus KE. KE is what? 10%. 10% means 0.10. 10% is what beta? 0.10. That's it. Chalo beta. Now, simple. 100 is equal to P1 plus 5. 100 is equal to what? P1 plus 5 divided by 1.1. Yeah, 1.10. जो भी लिखना है लिखो. Now 100 into 1.1 is equal to P1 plus
5, राइट है, क्लियर बेटा। नाउ 100 into 1.1 क्या हो गया अपना आंसर 110, यस, this is what 110 is equal to what P1 plus 5, ठीक है। नाउ 110 माइनस ये 5 इधर प्लस है ना बेटा, इस साइड आ जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू P1. So finally answer will be what? P1 is equal to what? 105. तो इधर दिखा दे रहा हूँ 105 is equal to RP1. So finally answer is what? RP1 is 105. This is what P1. ठीक है, clear everyone? RP1 is 105. Okay, चलो, तो this is the case when dividend is declared. When dividend is declared, right है, ये आपका dividend declared का केस था, dividend declared, ठीक है, right, dividend declared. Now the next case is what? When dividend is not declared. तो ये लिखना मत साइड में, ये तो मैंने ऐसे बताने के लिए लिखा, ठीक है, चलो. So dividend declared done. Yes, I can see the answers from many students. Well done everyone. Very good. Kumar, Rushik, Meenakshi, Neha, Meghna, Sunita, Ayush, Meenakshi, Yash. Well done बेटा. Well done everyone. सब रिकॉर्ड रहेगा, याद रखना. Well done. Now second one is what? If dividend is not declared. So next case, second part. What if dividend is what beta? If dividend is not what? If dividend is not declared. Okay, if dividend is not declared. So same formula पता ही है बेटा आपको. First what? 100 is equal to P1 plus, अब बेटा इधर क्या होगा? 0. Dividend is not declared ना, so here it will be 0 divided by what? 1 plus 0.1. 1 plus 0.1, ठीक है, that is 10%. Now आ जाओ. So 100 is equal to P1 plus 0 मतलब P1 ही हो गया, डिवाइड बाय 1.10. Now 100 into 1.10 is equal to P1. Now 0 तो खत्म हो गया अपना, उसका तो गेम ओवर. So 100 into 1.10 क्या हो गया? 110. So this is what? P1. So here the case is what? If dividend is not declared, then our P1 is what? This. Then our P1, if dividend is not declared, dividend what? Not declared. When dividend not declared, then our P1 is 110. And if dividend is declared, then our P1 is what? You can see here, 105. Right? If dividend is declared, then price is what? 105. And if dividend is not declared, then price is what? Then price is what? 110. That is 110. So remember it. Right? If dividend is not declared, at that time your price is 110. Okay? Yes. Very good, everyone. I can see the answers from many students. Very good. Well done, beta. 110 when dividend is not declared. Yes. चलो बेटा ये भी हो गया डन. अब क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख. ओके, तो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट. ये हो गया डन एवरीवन. चलो, सो द नेक्स्ट वन.
calculation of number of shares क्या calculation of number of shares to be issued. Calculation of what beta? Number of shares to be issued, right है what beta? Calculation of number of shares to be issued, right? कभी when the investment made is rupees 5 lakhs, investment है ना अपना, for the investment of rupees, for the investment of rupees कितना है investment? देखो क्वेश्चन में देखो 5 lakhs ही था ना कि कुछ दूसरा अमाउंट है, कितना है 5 lakhs. ओके, investment of rupees 5 lakhs for investment of rupees 5 lakhs. Okay, clear? For investment of what beta? Rupees 5 lakhs. That's it, right? चलो ये हो गया अपना. अब अपने को क्या करना बेटा? अपना जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पता है ना? फॉर्मूला नोट डाउन कर लो. क्या है फॉर्मूला इसका? डेल्टा एन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, इतना अपने को रिक्वायर्ड होगा फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5 lakhs व्हेन द नेट इनकम दैट इज अर्निंग 2,50,000. दिया ना क्वेश्चन में, व्हेन द नेट अर्निंग इज 2,50,000. सो एन इज इक्वल टू व्हाट? आई माइनस व्हाट? E minus ND1 and D1 divided by P1 divided by what beta? P1. Yes, well done विदिशा. ठीक है, so ये अपना फॉर्मूला है बेटा. Yes, very good everyone. Now अब सबसे पहले हम लोग कौन सा केस? व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड वाला केस. चलो, तो इसमें भी सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, व्हेन डिविडेंड इज व्हाट बेटा? डिक्लेयर्ड. चलो, सो व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट दैट टाइम, बराबर है, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स यू नीड, राइट है? सो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स यू नीड? यूज द फॉर्मूला, you will get the answer. So change in n, this we have to find it out, is equal to, अब देखो फॉर्मूला step by step we are using it. Now investment required is what? What is our investment required? Our investment required is what beta? 5 lakhs. What is our investment required? 5 lakhs. So investment is what? 5 lakhs. Investment required is what beta? 5 lakhs minus चलो E, अर्निंग. अर्निंग मीन्स नेट इनकम, आपको दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 2,50,000. दैट इज E, 2,50,000, right? Minus N. N is what? Your N is number of share at the beginning, which is 25,000 shares. You have seen in the question. So this is what? 25,000 shares. राइट, इंटू एन इंटू सी एन इंटू D1. ये इधर बीच में क्या है? इंटू का साइन है. सो इंटू D1. सो D1 अपना कितना है बेटा? रुपीज 5. दैट इज ऑल्सो गिवन रुपीज 5 पर शेयर. D1 is what? रुपीज 5 पर शेयर. ओके, डिवाइडेड बाय P1. अब P1 आपने कैलकुलेट किया है. नाउ P1 वी हैव टू सी विच P1 व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. सो सी व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड P1 इज व्हाट? 105. दिख रहा है ना इधर? 105. यस,
So P1 is what beta? 105, right? P1 is what? 105. Chalo, calculate it. So rupees 5 lakhs minus 2,50,000 minus this 25,000 shares into 5 per share. क्या बेटा 25,000 shares into 5 per share कितना आ जाएगा? 25,000 into 5 करो, 1,25,000, 25 5 125. So 1,25,000, right? 1,25,000. Clear? Divided by what? 105. Simple calculation, simple. Okay, Dimple, it's very simple. Now, after that, rupees 5 lakhs minus 2,50,000 minus 1,25,000. What will be the answer? 1,25,000. Okay, divided by 105. Divided by what beta? 105. करेक्ट है? चलो, तो कितना आ रहा है बच्चा? यस, वेल डन हर्ष, वेरी गुड, गुड ऋषिक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड ऋषिक, वेरी गुड आयुष, साक्षी. ठीक है, अब देखो, अब आपने किया कैलकुलेशन किया इधर. नाउ दिस इक्वल टू व्हाट बेटा? अब 5 lakhs था, उस पे से आपने ये माइनस कर दिया, दैट इज 125 है. ठीक है, 125 माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपका? 375 रुपीज. 3,75,000 डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? 105 डिवाइड बाय 105. ठीक है, तो अब एक्चुअली कितना शेयर्स आएगा बताओ मेरे को, डिवाइड कर दो. ठीक है, तो डिवाइड अगर आप करोगे तो आपको कितना आंसर मिल रहा था? 3. ओके, सो राउंड ऑफ ले लेना, 3571. सो 3571 शेयर्स. सो दिस इज व्हाट? डेल्टा एन. डेल्टा एन हो गया. 351 शेयर्स टू बी इश्यूड टू रेज इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5 lakhs. बराबर है कितना बेटा? 3571 shares to be issued to raise investment of rupees 5 lakhs when your net income is 2,50,000. जब आपका नेट इनकम 2,50,000 था. यस, बराबर है? यस बेटा, 2,3571 shares. ठीक है, ये भी हो गया अपना. ठीक है, चलो, अब उसके बाद अपने को क्या करना है? सेकेंड केस. Second case is for what? When what? When dividend is not declared. When dividend is not declared. When dividend is what beta? Not declared. राइट? तो अब जब डिविडेंड डिक्लेयर्ड ही नहीं होगा तो क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू इट एट दैट टाइम, राइट? जब डिविडेंड नहीं डिक्लेयर्ड होगा तो बेटा व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, सेम फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए. चलो, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? आई. आई मींस रुपीज 5 lakhs. आई इज व्हाट? रुपीज 5 lakhs minus what? E. Bracket में E. E is what? 2,50,000. E is 2,50,000 minus N. N means 25,000 shares. N is what? 25,000 shares into D1. अब बेटा इधर D1 तो लेना ही नहीं अपने को, D1 हम कुछ नहीं करेंगे, that is 0 into 0. Right? Divided by what? When dividend is not declared, at that time your market price C.
your market price is what? 110. At that time your market price was 110. 110, right? 110. क्लियर है? कितना बेटा? 110 है आपका. चलो, अब ये तो हो गया 110. तो अब क्या करना है आपने को? डायरेक्टली आ जाओ. तो 5 लाख, ठीक है. मार्केट प्राइस देखा ना बेटा कितना था पर शेयर? 105. ठीक है, तो 5 लाख हो गया माइनस 2,50,000 माइनस 25,000 इंटू जीरो हो गया. जीरो को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है तो पता ना क्या होता है, जीरो ही आ गया. डिवाइड बाय 110. ओके, तो चलो नाउ रुपीज 5 lakhs minus now 2,50,000 minus 0 वही सेम 2,50,000. और बेटा 2,50,000. 2,50,000 divided by 110 divided by what बेटा? 110. क्लियर है? चलो now so 5 lakh minus 2,50,000 2,50,000 divided by 110 divided by what? 110. क्लियर हो गया ये? तो कितना आ गया बेटा? यस, 2273. वेरी गुड, वेरी गुड. सुनीता, सिद्धेश, ऋषिक, साक्षी, यश, धीरज, वेरी गुड. पहले आंसर बता. ठीक है, गुड. ऋषिक, चलो अटेंडेंस डाल दो सब लोग अपना. एवरीवन फर्स्ट पुट योर अटेंडेंस. सो ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गया बेटा आपका. क्या आंसर आ गया? 2273 शेयर्स. सो फाइनली 2273 shares. This is what number of shares to be issued when the required investment is what? 5 lakhs, right? When the required investment is 5 lakhs and if dividend is not declared at that time. And dividend is not declared at that time. That's it. So 2273. Clear? 2273. अब ये तो हो गया बेटा, बराबर है? ये सब हो गया, ये सब जनरल अपना. अब मेन क्या बोल रहा है अपने को? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफेक्ट. ये देखो, एवरीवन डन विद अटेंडेंस? ओके, देखो अभी जो मेन फंडा अपने को एनालिसिस करना है वो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में. हमने तो सब कैलकुलेशन कर लिया, वी हैव डन एवरीथिंग. नाउ व्हाट दे सेड, M Limited requires to raise what? Rupees 5 lakhs. Yes, required to raise rupees 5 lakhs. ठीक है, for an approved investment expenditure. Now we have to show how does the MM approach affect. मतलब यहाँ affect के लिए आपको analysis करना पड़ेगा. You have to do the analysis. Approach, MM approach affect the value of M Limited. मतलब ये जो MM approach है वो कैसे affect कर रहा है? How the MM approach affect the value of M Limited? How? कैसे? बराबर है? तो वो करने के लिए पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा. मैं बताऊंगा कैसे करना है. अभी फिलहाल इतना अच्छे से समझ के रखो. इसका क्या? How does the MM approach affect the